city by the sea, once a small fishing village, is now the bustling economic hub of Pakistan. Its feverish growth over the years has resulted in a great disparity between the rich and the poor, and the literate and the illiterate. इतनी महंगाई हो गई है, जो गरीब आदमी अपने घर का नहीं कर सकता है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। 200-250 रुपया जिसको दिहाड़ी मिलती है तो अभी 1 किलो चीनी देखो कितने लगी हुई है, दाल किधर लगी हुई है, तो अभी वो अपना घर का करे या ये बच्चों की फीसें पूरी करे। इसी वजह से जो है ये बच्चे हमारे हैं सारे खराब हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर का माहौल भी सही नहीं हो रहा है। बहुत इरादा था पढ़ने का, लेकिन जैसे कि ये महंगाई के दौर में कोई पढ़ नहीं सकता है, तो काम धंधा भी ज़रूरी है, क्योंकि घर में खाने पीने के लिए कमाना ज़रूरी है। नहीं, मेरे बच्चे ने किसी ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं सका। पढ़ा है क्या, फीस इधर 300 रुपया माहवार लेते, पढ़ाई सही नहीं होती है। अभी हम बेवा औरत हैं, हम पढ़ाई का देगा अपना पेट पालेगा। According to official figures, the literacy rate in Pakistan is 46%, while the rate for girls is 26%. But educational experts say that the actual literacy rate in Pakistan is 26% and the rate for girls is only 12%. Being aware of this sad state of affairs, the Rotary Clubs of Karachi, South Pakistan and the Rotary Club of Brantford, Canada, with the cooperation of Rotary International, took up this challenge to try to do their part through the project Elimination of Illiteracy to Alleviate Poverty. Rotary is one of the largest humanitarian organizations in the world, and we're a group of individuals that come together with a belief that service above self is a way of life. The Rotary Foundation raises money through various activities around the world through our various clubs. There was a Rotary District Conference where the theme was literacy, and our club and everybody in attendance was challenged to come up with projects locally or internationally that would deal with the literacy issue. We have done two things, major things. One is we have brought about a desire in people to want to pursue further formal school education, especially among the young. We have also helped especially women and children become more independent. Women's Development Foundation organizes our classes and they select the teachers and they get the pupils together. NFE जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी एक फास्ट ट्रैक लर्निंग का तरीका है, और ये किताबें जो हैं स्पेशल सिलेबस है, और वो कहलाता है जुगनू सीरीज़। इसकी 4 किताबें होती हैं और 4 महीने का ये होता है, एक फेज़ होता है। To begin with, in 2006, 25 non-formal schools were opened in the villages around Rashidabad, Sindh, where 1,500 students have become literate. The matching grant project was started in November 2009 and continued up to 2011 in some of the slums of Karachi, with an initial enrollment of about 2,500 students. In 4 sequential phases of 4 months each, 110 schools were opened in the slums and rural areas surrounding Karachi. Since the two clubs collaborated, 5,000 students, mostly girls, have proudly achieved the desired level of basic literacy. कि रोटरी कराची ने हमारे साथ 2009 से काम करना शुरू किया और उनके तहत मुख्तलिफ फेजेस में हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स 6 जो है वो टाउन्स में प्रोग्राम चलाए, जिनमें लियारी टाउन, सदर टाउन, गडाब टाउन, बल्दिया टाउन, किमाड़ी टाउन, बिन कासिम टाउन है। और इन टाउन्स में हमारा काम करने का मकसद ये था कि वो इलाके जहाँ पर ख़वातीन, बच्चे या बच्चियाँ जिनकी एज 14-15 साल से अबव हो जाती है और उनकी जो है वो ज़िंदगी की गाड़ी जो एजुकेशन के हवाले से मिस हो चुकी है, तो हम उनको कम से कम इस काबिल बना देते हैं कि वो लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। ये एक उनकी ज़िंदगी में तब्दीली का अमल शुरू हुआ सेंटर्स की वजह से। एक सेंटर जो है वो किसी घर में, किसी भी आदमी के घर में हो जाता है, वहाँ एक हम दरी देते हैं, एक कूलर देते हैं, एक ब्लैक बोर्ड देते हैं, दैट इज़ ऑल, और उसके टीचर की तनख्वाह देते हैं। When Sabi
went to Pakistan in 2006, and he worked with the Rashidabad Memorial Welfare Organization, which was going to offer the non-formal education in villages. Upon his return, after positive investigation, we partnered with the Rotary Club of Karachi South. About 15 years ago, I happened to visit Pakistan and did my Rotary makeup at the Rotary Club of Karachi South. There I met their president, Rotarian Mohsin Ali. Literate Pakistan is an organization which was established by a Rotarian. They decided to have a fast-tracking program, and they involved psychologists, education experts, and develop a program called Jugnu program. This Literate Pakistan acts like a school board. They provide the workbooks to the students, train teachers, monitor centers on a regular basis. हमारे मास्टर ट्रेनर डेवलप्ड हैं, वो पहले सेंटर लोकेट करते हैं, टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, 3 से 4 दिन उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे इलाके में तालीम की बहुत कमी है, औरतों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैंने कहा शहर की औरतें इतनी वो पढ़ी लिखी हैं, वो हर काम में आगे, तो अपने इलाके की औरतें क्यों पीछे हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैंने भी कुछ सीखा, ताकि वो अखबार पढ़ सकें। कोई अगर शहर में जाते हैं तो उन्हें बस का नाम नहीं आता। यहाँ पे जब ये स्कूल खुला तो मैंने कई लड़कियों को देखा, वो आती थी, मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आई मुझे बहुत शौक़ हुआ पढ़ने का। मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ना है, इसने मुझे बुक्स दिए, मैंने कहा मैं आगे पढ़ूँगी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं स्कूल कभी भी नहीं गई थी। यहाँ पे ये मरियम मिस है ना, यहाँ घर में पढ़ाती थी, तो मुझे शौक़ हुआ, मैंने कहा मैं भी इसको यहाँ पे मरियम के घर जाती हूँ पढ़ने के लिए। फिर मैं यहाँ आई पढ़ने के लिए, अब मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ। जब मैं यहाँ शहर पे जाती हूँ किसी के साथ, तो वो बस का मुझे वो नंबर ना पता हो जाता है। तो आप देखिए कि एक लड़की की ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई कि जो घर बैठी एक बच्ची थी जिसको माँ बाप बोझ समझते थे, अब वो बोझ नहीं रही। उसने NFE सेंटर से ना सिर्फ कि 4 महीने में कुछ पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि हमने उसको ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तौर तरीक़ों के बारे में अवेयरनेस भी दी। As an optional course, a further 2 months was spent on teaching elementary English. Besides this, information sessions on reproductive health, hygienic living, and parenting were also conducted to improve their quality of life. मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इतने सारे जुगनू बन जाएं कि जो जहालत का अंधेरा है उसके अंदर रोशनी आ जाए। 2009 से लेकर और 2011 के एंड तक जो है तकरीबन 125 सेंटर्स रन किए, और उसमें हमारे पास 2500 के करीब इनरोलमेंट हुई। यहाँ पर हम कैथोलिक सर्विस चर्च के साथ जो है वो लिटरेसी क्लासेस चला रहे हैं, और हमारे इस चर्च में आने का मकसद यही है कि हम बिला तफरीक रंग नस्ल और मज़हब जो है सब कम्युनिटियों के साथ मिलकर जो है यहाँ पर अपनी तालीम के हवाले से जो रोटरी क्लब कनाडा और रोटरी क्लब कराची साउथ ने हमें फराम की है, हम उसके लिए सारी कम्युनिटियों के साथ मिलकर इन सारी सर्विसेज को फ़रोग़ दे रहे हैं। कौन सा लिया? आधा हिस्सा क्या होता है इसका? न, और पढ़िएगा आधा हिस्सा और आसमान और जमीन बनाए, दाल अलिफ खुदा। 2 सेब में एक सेब को मिला देना है तो कितने सेब हो जाएंगे? अगर आपके पास 4 मैंगो है और भूख लगी है तो 2 खा लें तो बाकी एक डालेंगे, कितने बने? 4। इन 4 महीनों में हम इनको साउंड्स
इसके अलावा इनकी बेसिक रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन चारों जो टूल्स हैं वो उन पे काम करते हैं ताकि ये कोई भी डाइजेस्ट, कोई भी मैगज़ीन और इस काबिल हो जाए 4 महीने में, ताकि ये पढ़ लिख के कहीं भी मतलब कोई भी अगर फॉर्म्स हैं या कुछ भी हैं NIC का फॉर्म ही है तो ये किसी के पास मत जाएं। खुदा का कलाम जैसे सीखना होता है, ऐसे कोई पढ़ना लिखना वगैरह, कोई बाहर बोर्ड में कोई लिखा होगा ना, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ अच्छा कागज भी लिखा होता है तो बाहर फेंक देते हैं, पढ़े लिखे हो गए तो ऐसा तो नहीं करेंगे। कभी 50 बच्चों ने और कभी 100 बच्चों ने इस तरह तालीम हासिल करके न सिर्फ क्लास 6 को टच किया, ऑनवर्ड मैट्रिक पास करके निकल चुके हैं। I think we have to work to provide them more books that they can reach further on, and this is another challenge we have to address it. The new matching grant plans to educate a total of 2,600 students. The benefits of this project far outweigh the cost of just $20 to make a person literate in the short span of 4 months. For $20 a person, in less than 4 months' time, we can teach a child to read, write, and do basic math. We are seeking partners, both financial and otherwise, to partner in this project. Rotary Club of Karachi South also contribute money for the project. They are also involved in monitoring of the centers, making up the budgets, issuing the checks for all the expenses. पैसा हमारे अकाउंट में आता है, अब हमारे अकाउंट से जो खर्चा होता है वो उसमें हमारे अपने क्लब की एक स्टीवर्डशिप कमेटी बनी हुई है जो उसको ओवरसी करती है। एजुकेशन जो है वो आपका पूरा सिस्टम चेंज करके रख देता है। जहां आपको पहले कोई एटिकेट्स, बिहेवियर, मैनर्स नहीं आ रहे होते, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे लाजमी सी बात है फैमिली चेंज हो जाती है, आपके बच्चों का जो स्टाइल है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। मैं तो कह रही हूँ कि मैं आगे अब बहुत पढूं। मैंने यहाँ से कुछ सीखा है लेकिन आगे भी सोचे कि पढूं और आगे यही डॉक्टर बनने का इरादा है, मैं करूँगी इंशाल्लाह। And the excitement about being able to write was unbelievable. They were able to not just write their names of their fathers, their brothers. They were able to write their addresses. They wanted to get up and tell us how they can now independently travel on their own because they can read bus routes, they can read the numbers on the bus, they can go shopping, they can read the labels on the various products sold in the shops. बहुत अच्छा लग रहा है ये किताब पढ़ के। पढ़ना चाहती हूँ कि मतलब मैट्रिक तक कि मैं खत लिख सकूँ, पढ़ भी सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत पढूं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म ना हो, जारी रहे। Almost every center we have been to, we have had this request, please don't stop. As long as the funding comes in and we are able to raise enough money, we will definitely continue with this project. In Pakistan, through this project, that we will get closer to achieving peace. We encourage you to get involved, participate, support this project, and working together, we will indeed do good in the world. Basically, it's the children, happy faces, happy children throughout the world. That's what we need.